हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्राजक्ता मोंढे। हो आप सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है फॉर एग्जामिनेशंस। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक AMT, that is alternate minimum tax. This topic is there in the syllabus of both CA Inter and CA Final Direct Taxation. So let us first understand the basic concept of AMT, and then we'll go to the provisions, procedure of computation, and then we will solve a numerical example. Alternate minimum tax is a minimum tax which is applicable on the assessees other than companies. नॉर्मली जब हम लोग इनकम टैक्स पढ़ते हैं तो हम लोगों ने देखा कि असेसीज को काफी सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं. There are certain sections which are related to their profits, which are also known as profit linked deductions. So let us say, for example, there is a section in which you can claim deduction of 100% of your profits if you fulfill certain conditions prescribed by the department. तो इनकम टैक्स एक्ट में ऐसे काफी सारे सेक्शंस हैं, बेनिफिट्स हैं, जिसमें आपके प्रॉफिट का 100% डिडक्शन आपको दे दिया जाता है अगर आप कुछ कंडीशंस को फुलफिल करते हैं जो उन सेक्शंस में प्रिस्क्राइब्ड है. नाउ व्हाट हैपेंस, द पर्टिकुलर पर्सन इज हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, बट बिकॉज ही इज बीइंग कवर्ड अंडर सर्टेन स्पेसिफिक सेक्शंस, उनका जो टैक्सेबल इनकम है वो रिड्यूस हो जाता है either to a very less amount or maybe zero, and they end up paying no taxes or very less tax. So basically income tax department के पास दिक्कत ये हुई कि ये जो businesses हैं ये पैसा तो कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इनको इनकम नहीं हो रही है या प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे ही दिए हुए बेनिफिट्स के वजह से, मतलब डिपार्टमेंट के ही दिए हुए बेनिफिट्स की वजह से ये अपनी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर दे रहे हैं, जिसके ऊपर इनको टैक्स लायबिलिटी नहीं आ रही है, जिससे ऑब्वियसली अल्टीमेटली गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है और एक रेगुलर कैश फ्लो नहीं जनरेट हो पा रहा है. So for such cases, the provisions of AMT have been introduced. So MAT and AMT are quite similar provisions. We'll not be discussing MAT in this video, that is applicable on company assessees. We'll be discussing AMT, that is alternate minimum tax. So alternate minimum tax is applicable on assessees other than company. Basically what happens in AMT कि क्योंकि आप आपके प्रॉफिट बेस्ड डिडक्शंस को लेकर के अपनी टैक्सेबल इनकम को कम कर दे रहे हो, सरकार ने बोला हम एक ऑल्टरनेट तरीका निकालेंगे आपसे टैक्स निकलवाने का. सो बेसिकली आपको करना क्या है, आपका जो रेगुलर प्रोविजन है टैक्स कैलकुलेट करने का, जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं, इनकम्स कैलकुलेट करेंगे, फिर डिडक्शंस देंगे, फिर हमारा टोटल इनकम आएगा, फिर टैक्स रेट लगाएंगे, सरचार्ज एक्सेट्रा व्हाटएवर, आप आपका रेगुलर प्रोविजन से पहले टैक्स निकालो, फिर आप एएमटी के प्रोविजन से टैक्स निकालो. अगर आपका रेगुलर टैक्स एएमटी के टैक्स से कम है, regular tax is less than the tax calculated as per AMT, you have to pay AMT, that is the minimum tax. तो एक तरीके से नाम से आपको अब मतलब समझ आया होगा कि एक ऑल्टरनेट टैक्स है जो सरकार आपसे ले रही है, और मिनिमम है कि किसी भी हालत में आपको कम से कम इतना टैक्स तो देना ही पड़ेगा. So basically you have to compute two different computations and then whichever is higher is to be paid. So this is a brief overview about what is basically AMT. Let us discuss the concept and go to the provisions of AMT sections. Income Tax Act contains profit linked and investment linked deductions, जैसे कि 35AD, we all know 35AD, to encourage investments in various industries and infrastructure facilities. Taxpayers eligible to claim such deductions end up paying no income tax or marginal income tax. Now, government has to maintain their cash flow. Therefore, in order to ensure payment of reasonable tax, the concept of AMT has been introduced. Now, let us discuss levy of AMT in case of persons other than company. So, it is levied on the assessees other than company. Any person other than a company who has claimed deduction under any section included in chapter 6A under the heading C, that is deduction in respect of certain incomes, or under section 10AA or
35 AD। तो सारे असेसीज को उन्होंने एएमटी के परव्यू में नहीं लिया है। 3 कैटेगरी के लोगों को एएमटी में आना पड़ेगा। पहला, ऐसे असेसीज जो इनकम बेस्ड डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं। नाउ इनकम बेस्ड डिडक्शन क्या होता है? इनकम बेस्ड डिडक्शन हमारे जो चैप्टर 6A है उसमें अलग अलग तरीके के आपको डिडक्शंस मिलते हैं। ये जो एटीसी एटीडी होते हैं ये पेमेंट बेस्ड डिडक्शंस हैं। आप पेमेंट करोगे एलआईसी का तो आपको डिडक्शन मिलेगा, आप पेमेंट करोगे मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का तो आपको डिडक्शन मिलेगा। वैसे ही कुछ इनकम बेस्ड डिडक्शंस होते हैं, जैसे कि अगर आपने किसी स्पेसिफिक एरिया में, बैकवर्ड एरिया में जाकर के अगर आपका बिजनेस स्टार्ट किया या कोई स्पेसिफिक नेचर का बिजनेस स्टार्ट किया, तो जितना भी आपका प्रॉफिट होगा वो 100%, 50%, 30% सब्जेक्ट टू द पर्टिकुलर सेक्शन क्या हो जाएगा? डिडक्ट हो जाएगा। तो अगर आपका प्रॉफिट है लेट अस से 20 लाख और अगर आप सारी कंडीशंस को फुलफिल कर देते हो तो पूरा 20 लाख हटा करके वो जीरो कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स हु आर इन सीए फाइनल, ये सारे सेक्शंस हमारे सिलेबस में हैं, तो आप लोगों ने पढ़े ही होंगे डिडक्शंस चैप्टर में। सीए इंटर में इनमें से सिर्फ कुछ कुछ सेक्शंस हैं, जैसे क्यूक्यूबी, आरआरबी, जो रॉयल्टी वगैरह के होते हैं। सो वॉट एवर सेक्शंस दैट आर बेस्ड ऑन योर इनकम, विच आर इनकम बेस्ड सेक्शंस, वो जो सारे सेक्शंस हैं उनमें से अगर आपने किसी का भी डिडक्शन लिया है एक्सेप्ट सेक्शन 80P। दूसरा, अगर 10AA का बेनिफिट आप ले रहे हो, जो आपको एसईजेड को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रॉफिट पर जो बेनिफिट मिलता है, दैट इज 10AA। एंड लास्टली 35AD, दैट इज इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शन। 100% capital expenditure is allowed as deduction. So if you are eligible to claim deduction under section 35AD specified list, in that case आपका जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो क्या हो जाएगा? एज अ डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। कोई भी एसएससी जिसने इनमें से कोई भी सेक्शन ऑप्ट किया है उसके ऊपर एएमटी के प्रोविजंस अट्रैक्ट होंगे। अब एएमटी में करना क्या होता है? तो पहले तो आप रेगुलर टैक्स निकालोगे, जो भी आपका रेगुलर प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग। then you will be calculating adjusted total income. Now what is adjusted total income? The adjusted total income is total income as per regular provisions, total income as per regular provisions and adjusted to remove the effect of all these deductions. ये जो डिडक्शंस हमने क्लेम किए हैं, मतलब इनकम बेस्ड डिडक्शन या 10AA या 35AD, इनके इफेक्ट को हटा करके आप आपकी टोटल इनकम को एडजस्ट करोगे और क्या कैलकुलेट करोगे? एडजस्टेड टोटल इनकम। सो लेट अस से फॉर एग्जांपल आपका जो टोटल इनकम है वो है 45 लाख। ओके, किसी एसएससी की टोटल इनकम है 45 लाख, जिसमें उसने 10AA का डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम किया हुआ है जब उसने इनकम कंप्यूट करी। तो व्हेन यू कैलकुलेटेड 45 lakhs you have already claimed deduction of 10AA, let us say amounting to 12 lakhs. ओके, अब 10AA कैसे कंप्यूट होता है, 35AD कैसे कंप्यूट होता है, ये हम रिस्पेक्टिव सेक्शंस में पढ़ चुके हैं। फिर भी जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो जहां जहां जरूरत होगी आई विल बी एक्सप्लेनिंग द प्रोविजंस टू यू। तो 12 लाख आपने 10AA में क्लेम किया है, जो कि डिडक्ट करने के बाद आपका जो टोटल इनकम आया है वो आया है 45 lakhs। तो अब आप क्या करोगे? इसके इफेक्ट को हटाओगे, बिकॉज यू वांट टू रिमूव द इफेक्ट। जो चीज माइनस करिए उसको क्या कर देंगे? प्लस। तो 45 lakhs में आप 10AA के डिडक्शन को ऐड बैक कर दोगे, यू विल गेट 57 lakhs. Now this 57 lakhs will be your adjusted total income on which you have to calculate the alternate minimum tax. तो मतलब 45 lakhs पे रेगुलर टैक्स लगाओ, जो एडजस्टेड टोटल इनकम है उस पे एएमटी लगाओ, और अगर हमारा रेगुलर टैक्स एएमटी से कम है तो हमें एएमटी ही पे करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली दोनों में से जो ज्यादा है वो अमाउंट हमें गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है, सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एएमटी। किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होगा? प्रोविजंस ऑफ एएमटी वुड हाउएवर नॉट बी एप्लीकेबल to individual HUF, AOP, BOI, incorporated or not, or artificial juridical person if adjusted total income of such person does not exceed 20 lakhs. तो अगर ये जो हमारी adjusted total income है ये 20 लाख से ज्यादा नहीं है, does not exceed 20 lakhs, then the provisions of AMT will not be applicable. आप AMT से क्या हो जाओगे?
बाहर हो जाओगे, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ AMT. Also, people who are opting for 115 BAC, that is the alternative tax regime, and 115 BAD, again alternative tax regime for cooperative societies, उनके ऊपर AMT के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं रहेंगे, ठीक है। चलिए, अब हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ में आया। रेट क्या होता है? तो द रेट इज 18.5% AMT। बाकी जो प्रोविजंस होते हैं सरचार्ज के, सेस के, वो एज इट इज एप्लीकेबल होंगे। तो बेसिकली होगा ये कि आपका जो रेगुलर टैक्स का रेट है, वट एवर 30%, 25%, जो भी आपके केस में आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, उसकी जगह आप 18.5% से टैक्स निकालोगे ऑन योर एडजस्टेड टोटल इनकम. So for the purposes of AMT, this adjusted total income will be deemed to be your total income on which you will be applying 18.5%. अगर ये टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है इंडिविजुअल्स की केस में, तो सरचार्ज लगेगा जो भी आपका एप्लीकेबल रेट है, और सेस लगेगा। वो सारे प्रोविजंस एज इट इज एप्लीकेबल रहेंगे। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल बी कैलकुलेटिंग द टैक्स। सो देखिए क्या लिखा हुआ है। Such person shall be liable to pay the income tax on adjusted total income plus surcharge plus cess as the case may be. Okay, चलिए, in case of a cooperative society, alternate minimum tax would be 15%. ये एक specific उन्होंने condition दे रखी है cooperative societies के लिए. Other than that, the rate is 18.5. Adjusted total income, we already discussed the concept of adjusted total income. So basically, you will be computing the total income without giving effect of these sections. तो 10AA अगर माइनस किया है, एड बैक कर दो। प्रॉफिट लिंक्ड कोई सा भी सेक्शन, कोई सा भी डिडक्शन अगर आपने माइनस किया है, 80QQB, RRB, एनी सेक्शन माइनस किया है, उसको एड बैक कर दो, अगेन एक्सेप्ट फॉर 80P। एंड 35AD का अगर आपने कोई बेनिफिट लिया है तो उसको भी वापस से एड बैक कर दो। हाउएवर, one very important point is to be kept in mind when we are talking about the deduction under section 35AD. 35AD में ये बोला गया है कि आपका जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 100% डिडक्शन अलाउ होगा। करेक्ट। तो सपोज आपने कोई बिल्डिंग खरीदी, ठीक है, फॉर योर स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD, आपने कोई बिल्डिंग खरीदी लेट अस से 50 लाख की, और वो पूरा 100% आपने आपके P&L में माइनस कर लिया। तो सपोज आपका जो प्रॉफिट आ रहा था स्पेसिफाइड बिजनेस से वो आ रहा था 80 लाख का, आपने 50 लाख का 35AD का डिडक्शन क्लेम किया, तो आपका फाइनल प्रॉफिट हो गया 30 लाख। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लेट अस अज्यूम इसके अलावा कोई डिडक्शन, कोई बेनिफिट, कोई इनकम नहीं है, बस इतना ही कंप्यूटेशन है उस असेसी का। अब आपको निकालना है एडजस्टेड टोटल इनकम। तो आपने क्या किया, आपने इस डिडक्शन को ऐड बैक कर दिया, है ना। मतलब 30 लाख की जो इनकम थी उसमें आपने ये निकाला कि अगर मुझे डिडक्शन नहीं मिला होता तो मेरी इनकम कितनी होती। द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम इज कि इफ द असेसी वाज नॉट अलाउड और एलिजिबल टू क्लेम दीज डिडक्शंस, तो फिर उसकी इनकम कितनी आती, उस पर आपको 18.5% लगाना है। तो आपने क्या किया, आपने डिडक्शन को ऐड बैक कर दिया, ठीक है। अब असेसी बोल रहा है कि सर मैं 50 लाख ऐड तो कर रहा हूं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट है और अगर ये 35AD में अलाउड नहीं होता ये डिडक्शन, तो मैं इस पे नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो क्लेम करती। तो डिपार्टमेंट ने बोला हाँ बिल्कुल करते। तो असेसी ने बोला कि सर मेरा 35AD का डिडक्शन आप ऐड बैक करो फॉर द पर्पसेस ऑफ कंप्यूटिंग एडजस्टेड टोटल इनकम, लेकिन उस पर्टिकुलर असेट पर जो डेप्रिसिएशन मुझे मिलता अंडर सेक्शन 32, इफ सच डिडक्शन वुड नॉट हैव बीन क्लेम्ड, वो डेप्रिसिएशन मुझे क्या कर दो, अलाउ करो, क्योंकि वो तो हर किसी का हक है, डेप्रिसिएशन तो मैंडेटरी क्लेम है, तो वो तो मैं क्लेम करूंगी। तो उन्होंने बोला बात तो सही है, 10% सपोज रेट है आपके असेट के ऊपर, तो 50 लाख आप ऐड करोगे और 5 लाख का करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आप क्या कर दोगे, माइनस, तो आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम कितनी हो गई, 75 लाख। सो दिस पॉइंट इज टू बी केप्ट इन माइंड फॉर 35AD। सो देखिए क्या लिखा है, देखो, as increased by, adjusted total income would be your total income as increased by deduction claimed if any under section 10AA, deduction claimed under section 35AD
as reduced by depreciation allowable under section 32, as if no deduction under section 35 AD was allowed in respect of such asset. Okay, तो डिडक्शन ऐड होगा, डेप्रिसिएशन माइनस होगा, नेट इफेक्ट आ जाएगा. डिडक्शन अंडर एनी सेक्शन अंडर चैप्टर 6A अंडर द हेडिंग डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन इनकम्स. इंटरमीडिएट लेवल में हमें सिर्फ ये है. फाइनल लेवल में जितने भी स्टूडेंट्स आप हैं अभी फिलहाल, तो आपके लिए तो सारे सेक्शंस एप्लीकेबल हैं. Whatever income based deductions, they will be added back. ठीक है, all these points will be added back. You will be calculating the adjusted total income. Now after calculating adjusted total income, suppose आपका tax on regular income आया 2 लाख और AMT आया 2,50,000, तो आपको पे क्या करना पड़ेगा? You will be required to pay the AMT, that is alternate minimum tax, and in this particular case that is 2,50,000, you because you are paying extra tax, एक तरीके से आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो. मतलब असेसी के हिसाब से सोचा जाए तो जो रेगुलर प्रोविजंस हैं, जो बेनिफिट्स हैं 10AA, प्रॉफिट बेस 35 AD, ये बेनिफिट्स तो सरकार ने दिए. तो सरकार के ही बेनिफिट्स यूज करके अगर मेरा टैक्स कम हो रहा है तो सरकार को ही तकलीफ हो रही है. तो 2 लाख का जो मेरा रेगुलर इनकम टैक्स है वो पे करने की बजाय मुझे एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ रहा है 50,000 का. इसका मैं फ्यूचर में क्या क्लेम कर सकती हूँ? AMT क्रेडिट. सो दिस विल बी रिकॉर्डेड एज AMT क्रेडिट इन माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स. गवर्नमेंट ने बोला आप चिंता मत करो, हम अगर आपसे एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं तो आगे हम आपको इसका बेनिफिट देंगे, तो आप इसको अपना खर्चा मत मानो, इसको अपना असेट मान करके एज अ क्रेडिट बैलेंस शीट में शो करो कि फ्यूचर में हम आपको इसका बेनिफिट देंगे. सो बेसिकली इफ यू आर पेइंग AMT rather than paying the regular tax, the difference, that is the additional tax that you are paying because of the applicability of AMT, is allowed as AMT credit. So आप उसको अगले साल क्या कर सकते हो? एडजस्ट. अब अगले साल when you will be adjusting the AMT credit, or in the next year, whatever period you are allowed to carry forward this, that we'll talk about, but जितने भी साल आप इसको carry forward कर सकते हो, जिस साल आप उसको एडजस्ट कर रहे हो उस साल ये सिचुएशन उल्टी होनी चाहिए. मतलब आपका जो AMT है that should be more than the regular tax payable. तो let us say आपका नेक्स्ट ईयर ये सिचुएशन है. फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लेट अस टेक सम ईयर्स, तो हमको थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी. 22-23 में आपने AMT पे किया, मतलब 50,000 एक्स्ट्रा दिया, क्रेडिट में खड़ा कर दिया. अगले साल 23-24 में आपका AMT आ रहा है 2,80,000 और आपका रेगुलर टैक्स आ रहा है 2 लाख, सॉरी इसको ज्यादा कर देते हैं, आपका रेगुलर टैक्स आ रहा है 3 लाख. मतलब आपका जो रेगुलर टैक्स है वो AMT से ज्यादा है. तो विच एवर इज हायर, मतलब आप पे क्या करोगे? रेगुलर टैक्स, दैट इज 3 lakhs. However, the difference, that is 20,000, can be adjusted from the brought forward AMT क्रेडिट. तो अगले साल मतलब 23-24 में आप पे तो पूरा 3 लाख करना है आपको, जिसमें से 2,80,000 तो आपको बैंक से देने पड़ेंगे करंट ईयर में. बाकी का 20,000 आप आपके पिछले साल का ये जो 50,000 का क्रेडिट था इसमें से यूटिलाइज कर सकते हो. आ रही है बात समझ में? सो शॉर्ट में अगर बात करें, अगर आपका AMT ज्यादा है तो आपको AMT देना पड़ेगा, जो एक्सेस है वो AMT क्रेडिट के रूप में आपके पास अवेलेबल रहेगा. वो आप कब एडजस्ट कर सकते हो? अगले सालों में, जिस साल सिचुएशन उल्टी हो जाएगी, मतलब रेगुलर टैक्स AMT से ज्यादा हो जाएगा, उस एक्सेस को पे करने के लिए आप ब्रॉड फॉरवर्ड AMT क्रेडिट का इस्तेमाल कर सकते हो. ये जो AMT क्रेडिट है ये मैक्सिमम 15 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है. मतलब आप 15 साल तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. इस 15 साल में कभी भी जब ये सिचुएशन आ जाएगी कि AMT से ज्यादा रेगुलर टैक्स बनेगा, तब आप इस क्रेडिट को यूटिलाइज कर सकते हो. अगर 15 इयर्स में भी बेनिफिट नहीं मिला, देन द क्रेडिट वुड लैप्स. ओके, सो बेसिकली दिस पॉइंट इज टू बी केप्ट इन माइंड
Credit is allowable even if the adjusted total income does not exceed 20 lakhs in the year of set off. तो वो कंडीशन आपको सेट ऑफ के ईयर में देखने की जरूरत नहीं है. बाकी के सारे प्रोविजंस, एडवांस टैक्स, इंटरेस्ट 234 ए बी सी एक्सेट्रा जो भी है वो सारे एज इट इज अप्लाई होंगे, उनमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है. जस्ट आपका इनकम कंप्यूट करने का तरीका और उसका जो रेट है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है. That is the only difference. So this is the concept of AMT. Now let us discuss one question and it will also clear the concepts कि कैसे निकालना है, क्या करना है. X, an individual set up a unit in special economic zone in the financial year 1819 for the production of washing machines. The unit fulfills all the conditions of section 10AA. During the financial year 21-22, he has also set up a warehousing facility फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. तो ये स्पेसिफाइड बिजनेस में आ गए. 35 AD लग गया, इधर 10AA लग गया, है ना. कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 75 lakhs इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लैंड. The warehouse became operational with effect from 1st of April 22 and the expenditure was capitalized. तो 35 AD में ये चीज क्लियरली बोली है, आपने सेक्शन पढ़ाई है कि अगर आपके कमेंसमेंट से पहले का कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो आप उसका बेनिफिट तभी क्लेम कर सकते हो अगर एज ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट वो आपकी बुक्स में कैपिटलाइज्ड है. तो इनके केस में वो लिखा है कि पुराना एक्सपेंस है और करंट 1st of April 2022 को वो हमारी बुक्स में कैपिटलाइज्ड है, तो हम इस 75 lakhs का डिडक्शन इस पर्टिकुलर ईयर में कंसिडर कर सकते हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 35 AD. चलिए अब बात कर लेते हैं क्या क्या दिया है. प्रॉफिट ऑफ द यूनिट लोकेटेड इन SEZ 40 लाख. जो यूनिट हमारी SEZ में लोकेटेड है उसका प्रॉफिट है 40 lakhs. एक्सपोर्ट सेल्स ऑफ द अबव यूनिट 80 lakhs. डोमेस्टिक सेल्स 20 lakhs. तो टोटल सेल कितनी हो गई 1 करोड़. ठीक है, जिसमें से 80% एक्सपोर्ट है. तो 10AA का प्रोविजन क्या कहता है? 10AA का प्रोविजन ये कहता है कि आपका जितना भी प्रॉफिट है इसमें से जो एक्सपोर्ट सेल्स का एट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, profit attributable to the export sale या profit generated from the export sale will be allowed as a deduction of 100% for the first 5 years. आगे के भी provisions है 50% वगैरह, but हम first 5 years में आ रहे हैं, है ना, 18-19 से लेके अभी में, तो हमारे केस में 100% वाला एप्लीकेबल हो जाएगा. नेक्स्ट है 35 AD. तो उस बिजनेस से प्रॉफिट हुआ है आपको 1 करोड़ 5 लाख का. 35 AD में आपने इन्वेस्ट किया है 75 lakhs का. हाउएवर 10 लाख उसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर लैंड के लिए है और लैंड का कैपिटल एक्सपेंडिचर एप्लीकेबल अलाउड नहीं होगा डिडक्शन के लिए, तो आप 65 lakhs का डिडक्शन यहाँ से क्लेम कर सकते हो. इसके अलावा हमें क्या बोला है? कंप्यूट इनकम टैक्स बोथ AMT एंड द रेगुलर टैक्स. नाउ इन दिस केस कीप इन माइंड क्वेश्चन अगर साइलेंट भी है तो भी अगर ये सारे सेक्शंस हैं तो आपको AMT की एप्लीकेबिलिटी भी एक बार चेक करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि कंसिडर करना ही पड़ेगा कि AMT लग तो नहीं रहा है. क्वेश्चन साइलेंट है तो भी आपको एक बार चेक कर लेना है. ठीक है. 23-24 both as per the regular provisions of the Income Tax Act and as per BAC for assessment year 23-24 advise Mr. X whether he should opt for BAC. अब देखो दो बातें हैं. जब आप रेगुलर तरीके से टैक्स पे करोगे तब आपको दोनों निकालना पड़ेगा, रेगुलर और AMT, और दोनों में से जो हायर अमाउंट रहेगा वो आपको पे करना है. ठीक है. हाउएवर अगर आप 115 BAC ऑप्ट कर रहे हो, मतलब आप आपका ऑल्टरनेटिव रेजिम ऑप्ट कर रहे हो, तो आप AMT के प्रोविजन से बाहर हो जाते हो. ठीक है. सो वी हैव टू कंप्यूट बोथ द केसेस. रेगुलर में भी दोनों, रेगुलर और AMT और BAC. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे. पहले रेगुलर तरीके से कैलकुलेट करके देखते हैं. सो हमें सबसे पहले हमारा जो प्रॉफिट फ्रॉम SEZ यूनिट दिया हुआ है, आप लोग प्रॉपरली इसको फॉर्मेट में करेंगे. सबसे पहले लिखेंगे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट. प्रॉफिट फ्रॉम SEZ. So what is the profit from SEZ? 40 lakhs is the profit from SEZ, out of which export profit is 40 lakhs multiplied by export sales upon total sales. मतलब 80% of your total profit would become exempt, or you can say deduction will be allowed under section 10AA. So the final taxable amount would be
8 lakhs. Next is 35 AD. 35 AD का आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट फ्रॉम business eligible under section 35 AD is 1 crore 5 lakhs, out of which deduction under section 35 AD is allowable of rupees 65 lakhs. Why 65 lakhs? क्योंकि 75 में से 10 लाख का लैंड जुड़ा हुआ है जो हमने हटा दिया, तो 65 lakhs बाहर करके हमारा अमाउंट बचता है 40 lakhs का. तो टोटल जो हमारी इनकम हुई वो हो गई 48 lakhs. और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो और कोई बेनिफिट डिडक्शन नहीं मिलेगा. इंडिविजुअल है तो नॉर्मल हमारा टैक्स हम कैलकुलेट करें. कोई एज वगैरह का कुछ केस दिया हुआ है क्या? नहीं. तो फिर हमें रेगुलर स्लैब के हिसाब से निकालना है. तो 48 lakhs माइनस 10 लाख करके एक शॉर्टकट तरीका जो है उससे भी आप निकाल सकते हो, नहीं तो आप नॉर्मल कैलकुलेट करो. और क्योंकि 50 लाख के अंदर है तो आपको इस पे सरचार्ज भी लगाने की जरूरत नहीं है. 4% का सेस जोड़ के 1302600 हमारा रेगुलर टैक्स आएगा. हाउएवर क्योंकि इसने 10AA और 35 AD का डिडक्शन क्लेम किया है, आपको AMT के प्रोविजंस के हिसाब से भी टैक्स कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा. So we will be computing adjusted total income for the purposes of AMT. ऐसा हेडिंग डालना रहेगा आपको. टोटल इनकम से शुरुआत करेंगे और इन डिडक्शंस का इफेक्ट हटाते हुए चलेंगे. सो 48 लाख में ऐड कर देते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA. जो 10AA हमने क्लेम किया था 32 लाख, वो ऐड बैक हो जाएगा. डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD जो हमने क्लेम किया था 65 lakhs, वो ऐड बैक हो जाएगा. और हमने बात करी अभी कि लेस करोगे आप डेप्रीसिएशन, क्योंकि अगर 35 AD नहीं मिला होता तो डेप्रीसिएशन मिलता. एज द क्वेश्चन सेज वेयर हाउस, तो हम लेट करके चलते हैं कि ये वेयर हाउस की बिल्डिंग होगी, तो उसके ऊपर हम 10% से डेप्रीसिएशन लगा देते हैं. 65 माइनस 6,50,000, तो हमारा जो इनकम आ रही है एडजस्टेड टोटल इनकम वो आ रही है 1,38,50,000. क्रॉस चेक कर लेते हैं. करेक्ट, 1,38,50,000. इस पर हमें लगाना है AMT एट द रेट ऑफ 18.5%, तो लगा देते हैं इंटू 18.5%. 2562250, 1,38,00,000. क्योंकि अब AMT के लिए ये हमारी डीम्ड इनकम हो गई है टोटल इनकम, तो सरचार्ज भी लग जाएगा 15% से, क्योंकि हमारा जो इनकम है वो 1 करोड़ से ऊपर है पर 2 करोड़ के अंदर है. तो इस पर लगा देते हैं 15% सरचार्ज और लास्ट में लगेगा सेस ऑफ 4%. सब कुछ मिला करके आपका जो अमाउंट आ रहा है वो अमाउंट हम हमारा टैक्स का कैलकुलेट कर लेंगे. So whatever is the amount of your tax, it will be increased by your surcharge and cess. आप भी कर लीजिए. So the amount of tax that is calculated is 30,64450. As it is the final tax, it will be rounded off to the nearest multiple of 10. अब हम आ जाते हैं, तो बेसिकली हमें AMT लगेगा कि रेगुलर टैक्स लगेगा. देखें, हमारा रेगुलर टैक्स आ रहा है दिस मच एंड हमारा AMT आ रहा है 30 लाख. तो ऑब्वियसली हमें क्या पे करना पड़ेगा? AMT. Since the regular tax is less than the alternate minimum tax, the AMT shall be payable and therefore the total liability will be इतना माइनस हमारा जो रेगुलर टैक्स है, तो हमारा AMT क्रेडिट आ जाएगा 1302600. AMT क्रेडिट आ गया हमारा 1761850. ये जो AMT क्रेडिट है ये 15 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. और कब एडजस्ट होगा? जिस साल सिचुएशन उल्टी हो जाएगी, मतलब रेगुलर टैक्स विल बी मोर देन द ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स. अब बात करते हैं BAC. 115 BAC के हिसाब से अगर हम टैक्स कैलकुलेट करें तो क्या हमारा जो अमाउंट है, जो हमारा टैक्स है, क्या उस पर्टिकुलर केस में कोई ज्यादा बेनिफिट मिलेगा? तो हम देख लेते हैं. 115 BAC में अगेन हमें जो कुछ कुछ डिडक्शंस हैं अलाउड नहीं होते हैं, तो उन डिडक्शंस को इग्नोर करके हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. अगेन उन डिडक्शंस के इफेक्ट को नलिफाई करते चलते हैं. कोइंसिडेंटली वो दोनों ही डिडक्शंस जो AMT में ऐड बैक करने होते हैं वो दोनों ही BAC में अलाउड नहीं है. 115 BAC आप एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं. सो सेक्शन 35 AD इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन अंडर 115 BAC.
and also you are not eligible to claim the benefit of 10AA in 115 BAC, that is the SEZ benefit allowed. तो हमारा जो 115 BAC के लिए इनकम आएगी वो सेम वही आ जाएगी जो हमने AMT के लिए कैलकुलेट करी है ना. आई होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट. दोनों में ही सेम चीजों का इफेक्ट देना है. तो फिर से कंप्यूटेशन में नहीं बना रही हूँ, एग्जाम में ऑब्वियसली आपको बनाना रहेगा. तो you have reversed the deductions because these deductions are not allowable under your 115 BAC alternative regime. So 1,38,50,000 पर टैक्स लगाएंगे हम 115 BAC के हमारे रेजीम के हिसाब से. तो इस रेजीम के हिसाब से हम टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं. 115 BAC के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं. Let us see what is the tax liability. सो 0 से लेके 2.5 लाख तक नील, 2.5 से 5 लाख तक 5% तो 12,500, 5 लाख से 7,50,000 तक 10% दैट इज 25,000, 7,50,000 से 10 लाख तक 15% दैट इज 37,500, 10 लाख से 12.5 लाख तक 20% सो दैट इज 50,000, 12 लाख से 12.5 लाख से 15 लाख तक 25% that is 62,500 and on the balance amount more than 15 lakhs तो 1,38,50,000 में से हम अगर हटाते हैं हमारे 15 लाख रुपए बैलेंस पर 30% प्लस हम इन सारे अमाउंट्स को ऐड कर देते हैं जो हमने स्टेप वाइज टैक्स कैलकुलेट करे हैं और the final amount of tax that is payable under 115 BAC will be 3892,500. Correct? So 38,92,500 plus surcharge क्योंकि हमारी इनकम 1 करोड़ के ऊपर चली गई है तो 4,476,375 plus cess 4,655,430 is the final tax payable under section 115 BAC 46,55,000. और उधर कितना देना पड़ रहा है उधर AMT देना पड़ रहा है पर तो भी AMT हमारा कितना है 30 लाख. तो भले ही हम रेगुलर में जा रहे हैं हमको AMT अप्लाई हो रहा है तो भी हमारे लिए BAC जो है वो घाटे का सौदा है. उसके बावजूद हमको टैक्स ज्यादा पड़ रहा है और उल्टा उधर तो क्रेडिट भी मिलेगा. अगर आप एक्स्ट्रा AMT देते हो तो क्रेडिट मिलेगा. कंडीशंस अगर आप फुलफिल करते हो तो आप बेनिफिट क्लेम कर सकते हो. यहाँ पर कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा. तो बेटर है कि ही शुड नॉट ऑप्ट फॉर BAC और ये इन्होंने भी वो पॉइंट लिख दिया. मोर ओवर वहां पर जो एक्स्ट्रा है उसका आपको क्रेडिट मिलेगा. तो दिस अमाउंट विल बी अलाउड एज क्रेडिट. सो व्हाट यू विल बी गिविंग द सॉल्यूशन कि इस केस में आपको सिर्फ रेगुलर टैक्स देने की करना चाहिए. आपको ऑप्ट नहीं करना चाहिए. इंडिविजुअल्स सॉरी आपका 115 BAC दैट इज ऑल्टरनेटिव रेजिम शुड नॉट बी ऑप्टेड एज इट इज रिजल्टिंग इन अ हायर अमाउंट ऑफ टैक्स एंड द अमाउंट ऑफ क्रेडिट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड in the given case. तो यहाँ पर उन्होंने अपने को पूरा एक्सप्लेन भी करके दिया है. वी अंडरस्टूड द फुल सोल्यूशन. रेगुलर AMT और 115 BAC तीनों का क्रॉस एप्लीकेशन इस एग्जाम्पल में हमको समझ में आया. गो थ्रू द क्वेश्चंस, गो टू द प्रोविजंस. जब भी एग्जाम में सॉल्व करो बहुत प्रॉपरली वर्किंग नोट, रिटर्न नोट्स और कंप्यूटेशनल फॉर्मेट्स के साथ आपको सॉल्व करना है. कहीं पे भी कोई शॉर्टकट नहीं लगाना है कि रफ में कैलकुलेट करके फेस पर सिर्फ फाइनल फिगर्स लिख दिए. आपके मार्क्स उससे अफेक्ट होंगे. सो बी वेरी केयरफुल एंड कॉशियस विद द प्रेजेंटेशन एज वेल. वर्किंग नोट्स दे कैरी मार्क्स. So it is very, very important to present the answers very properly. So in this video, we understood the concept of AMT. We discussed the provisions and we also solved a question including the application of 115 BAC with AMT. I hope all the concepts were clear. In case you have any doubts, you can feel free to discuss. All the best.